بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، اب سب کہاں ہیں؟ پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، چیختے چیچنتے اس کی اوز بیٹھ گئی تھی۔ بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے کیوں بند کیا ہے؟ وہ دروازے سے سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، یہاں تک کہ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ اس اسنا میں دروازے کے باہر اوٹے سنائی دی، وہ دروازہ مزید زور زور سے بچانے لگی تھی۔ کون ہے باہر؟ مجھے نکالو یہاں سے، تمہیں اللہ کا واسط ہوگا، گویے پر رحم کر دو۔ چاری جہاں سے چلائی تھی لوموں کی است قریب کی باری تھی، جو میں بالکل چھوٹا بھی بھری بھی اس کے بات میں اس کے لیے کھانے کی تھی، مگر وہ 1 منٹ بھی اس قید خانے میں نہیں گزار سکتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ مزید یہاں رہی تو مر جائے گی۔ ملازمہ نے ایک ہی جھٹکے میں مناہل کا بازو پکڑا اور اسے دروازے سے اندر دھکیل دیا۔ اس ملازمہ کے سامنے مناہل بہت کمزور سی تھی، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس قید خانے میں زمین پر بری طرح سے گر گئی، اس کی کوہنیاں اور گھٹنے پتھر پلے فرش سے رگڑ کر بری طرح سے اس کی کوہنیاں اور گھٹنے پتھر پلے فرش سے رگڑ کر بری طرح سے چھل گئے تھے۔ اس کا سر بھی فرش سے ٹکرایا تھا، ماتھے سے خون کی لکیر نکل کر اس کے دودھیا گالوں پر بہنے کے لیے تھی۔ مناہل نے بے یقینی سے پلٹ کر اس ملازمہ کی جانب دیکھا۔ کل تک یہی ملازمہ مناہل بی بی کرتے کرتے نہ تھکتی تھی، اور آج اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی تھی اپنی اس حد تک پر مناہل چند لمحوں کے لیے حیران کیا رہ گئی، اور پھر وہ ہمت کر کے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ کل شام سے یہاں بند تھی، اور اب جانے دوسرے دن کا کون سا پر چل رہا تھا۔ مجھے یہاں سے باہر جانے دو، کیوں مجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ اگر سم کو پتہ چل گیا تو تم لوگوں کا وہ بر احشر کر دیں گے۔ مناہل اس ملازمہ پر بری طرح سے چلائی تھی، اسے اپنی اس بے عزتی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، مگر ملازمہ پر اس کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ملازمہ نے اس پر ایک کثر سی نظر ڈالی اور اطمینان سے اندر داخل ہوئی۔ کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ مناہل نے بے یقینی سے کھانے کی ٹرے کو دیکھا تھا، جس میں باسی روٹی اور پانی کی طرح پیلی دال تھی۔ ایسا کھانا تو ان لوگوں نے کبھی اپنے ملازموں کو بھی کھانے کے لیے نہیں دیا تھا۔ اور پھر مناہل وہاں سے اٹھ کر باہر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ ملازمہ نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ سختی سے دبوچ لیا۔ اس کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ مناہل کے منہ سے سسکی نکلی۔ یہ سب میں سمر صاحب کے کہنے پر ہی کر رہی ہوں، جن کا نام لے کر تم مجھے ڈر رہی ہو۔ انہوں نے ہی تمہیں یہاں قید کر کے رکھا ہے، اور شاید وہ تمہیں قید کر کے بھول چکے ہیں، اس لیے میرا احسان مانو کہ میں تمہارے لیے کھانا لے آئی ہوں۔ اب چپ چاپ کھانا کھا لو، زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں۔ اگر باہر کسی کو تمہاری وزن گئی تو تمہارا برا حشر کر دیں گے۔ ملازمہ نے سختی سے کہہ کر مناہل کا بازو چھوڑ دیا۔ مناہل کو چند لمحوں کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ سم میرے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ جانتے ہیں مجھے اندھیرے سے کتنا ڈر لگتا ہے، وہ کبھی میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے۔ یہ سب کہتے ہوئے مناہل کی وہ اثر گوشیوں میں بدل گئی تھی۔ ملازمہ نے سر ہلایا اور وہاں سے باہر جانے لگی۔ مناہل بھی اس کے پیچھے لگ گئی، کیونکہ وہ مزید کسی بھی صورت یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ اب کی بار ملازمہ کا دماغ گھوم گیا، اس نے پلٹ کر ایک زوردار تھپڑ مناہل کے منہ پر جڑ دیا۔ مناہل کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور وہ وہیں فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ایک بار پھر سے گرنے کی وجہ سے اسے بری طرح سے چوٹیں آئی تھی۔ مناہل سے آج تک کسی نے اونچی اوز میں بات تک نہیں کی تھی، اور اب اسے ایک ملازمہ نے تھپڑ مارا تھا۔ یہ بات مناہل کی برداشت سے باہر تھی۔ بے ہوش پڑی مناہل کو اس ملازمہ نے تنفر سے دیکھا، اور ایک بار پھر اسے قید خانے میں بند کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ مناہل اندھیرے میں بے ہوش پڑی تھی، کوئی بھی اسے بچانے نہیں آیا تھا۔ اسے پیار کرنے والے سارے لوگ جانے کیوں اس کی آواز نہیں سن پا رہے تھے۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس وقت مناہل کہاں ہے۔ آج صبح سے ہی موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، بارش وقفے وقفے سے برس رہی تھی۔ ایسے میں اس حویلی کے مکین سرجوڑے پریشان بیٹھے تھے، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ جلال ملک کے چھوٹے بیٹے کو کسی نے جان سے مار دیا تھا، اس کی لاش کھیتوں میں سے ملی تھی، یوں جو ان موت پر کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ سبھی سنائے میں تھے، یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ جلال ملک کے بیٹے پر ہاتھ ڈالنا اس کام ہرگز نہیں تھا۔ جلال ملک اور اجلال ملک دونوں بھائی تھے، اور دونوں کی حویلیاں ایک ساتھ بنی ہوئی تھی، دونوں کی محبت مثالی تھی۔ ان دونوں میں کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ جلال ملک کے 2 بیٹے تھے، صدر ملک اور احمد ملک، اور احمد ملک کو کسی نے جان سے مار دیا تھا، جبکہ اجلال ملک کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑی مناہل تھی، جو ابھی محض 18 برس کی تھی۔ اس سے چھوٹا سعد تھا، جو ابھی 16 سال کا مکمل ہوا تھا، اور سب سے چھوٹی رامین تھی، جو ابھی 11 سال کی تھی۔ دونوں گھر امن و سکون کا گہوارہ تھے، مگر اچانک ہی
अहमद मुख की मौत ने फसादात को जन्म दे दिया। जलाल मलिक गुस्से से पागल हो रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि जिस किसी ने भी उनके बेटे को मौत के घाट उतारा है वो इसके टुकड़े कर दे। इस वक्त उन्होंने अपने चंद खास आदमियों को अहमद मुख के कातिलों को ढूंढने पर लगा दिया था, मगर कोई भी कातिल का सुराग नहीं लगा पा रहा था। उड़ते उड़ते ही इत्तला मिली कि अहमद मलिक रात को साद मुख के साथ था। ये बात तो सब ही जानते थे कि दोनों बचपन के दोस्त थे। इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और अक्सर एक साथ पाए जाते थे। दोनों अक्सर एक साथ घूमने के लिए भी निकल जाते थे। मगर अब अहमद मलिक का कत्ल हो अलिफ था और कुछ लोगों ने शक का रुख साद की जानिब मोड़ दिया था, जबकि वो लोग ये बात नहीं सोच रहे थे कि साद अभी महज 16 साल का था। वो ये कत्ल कैसे कर सकता था। अहमद की मैयत हवेली के सह में रखी थी। सब लोग वहीं जमा थे। सब का रू कर बुरा हाल हो चुका था। जब दो आदमी हवेली में दाखिल हुए वो लोग सीधा कर मुख के पास जा पहुंचे। सदर मुख को लगा कि वो लोग भी तज़ियत के लिए आए हैं, मगर उन दोनों आदमियों ने सदर मुख से कहा कि हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, जिसके लिए तन्हाई दरकार है। समर उन दोनों आदमियों को लेकर हवेली के मर्दान खाने की जानिब बढ़ गया। उन दोनों आदमियों ने कहा कि हमें पता है कातिल कौन है। उनकी बात सुनकर समर गुस्से से पागल हो गया और उसने इन आदमियों से कहा कि एक बार मुझे इस शख्स का नाम बता दें। अन आदमियों ने सर से कहा कि कल रात हम लोग इसी रास्ते से गुजर रहे थे। आपका भाई अहमद मलिक और अजलाल मुख का बेटा साद मुख दोनों एक साथ थे और उनकी किसी बात पर लड़ाई हो रही थी, यहाँ तक कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी। हम दोनों ने बड़ी मुश्किलों से जाकर दोनों को अलग किया था, मगर हम उन दोनों को ज्यादा नहीं रोक सकते थे क्योंकि दोनों ही हमारे मालिक हैं। इसलिए हम लोग वहां से चले आए। मगर साद मुख कुछ ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। वो बार बार अहमद मुख को धमकियां दे रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की भी धमकी दे रहे थे। ये कहकर उन दोनों आदमियों ने एक दूसरे की जानिब देखा और खामोश हो गए। लम्हे भर में समद मुख की आंखें सुर्ख हुई थी। इसने हमेशा ही साद को अपना छोटा भाई समझा था और ने इसके छोटे भाई की जान ले ली थी। सदर मुख वहां से इंतहाई गुस्से में उठा और मर्दान खाने से निकल गया। अब हम दोनों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए, जल्दी चिल्लू शहर जाने के लिए बस तैयार खड़ी होगी। दोनों आदमी एक दूसरे से बात कर रहे थे और फिर सबसे छुपते छुपाते इस जगह से निकल गए। बस में बैठकर दोनों ने अपनी अपनी जेबों में हाथ मारा तो दोनों की जेबें नोटों की गुड़ियों से भरी हुई थी। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की जानिब देखा और बस रवाना हो गई। पीछे सदर मुख गुस्से से पागल हो गया था। इसने हवेली के सह में जाते ही साद का बाजू पकड़ लिया और इसे बुरी तरह से मारने लगा। अचानक सब लोग बुरी तरह से घबरा गए क्योंकि सदर पर जुनून सवार हो गया था। वो साद को बुरी तरह से मार रहा था। साद जितना अपना बचाव के लिए कोशिशें कर रहा था, इतना ही सर का जुनून बढ़ता जा रहा था। लोग सिम को रोकने की कोशिश कर रहे थे। साद हैरान था कि आखिर समद को हुआ क्या है, वो इसे क्यों मार रहा है। और फिर बड़ी मुश्किल से लोगों ने सर को काबू किया। अहमद मुख की मैयत हवेली के सह में रखी थी और बड़ा भाई अपने हीचा के बेटे को बुरी तरह से मार रहा था, यहाँ तक कि साद की नाक और मुंह से बुरी तरह खून निकलने लगा। मिनाहिल भी अपने भाई का यह हश्र देखकर अपनी जगह हैरान रह गई थी। सभी समद मलिक से पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जो वो इस तरह से कर रहा है। इसने ही मेरे भाई को मारा है। ये सुनकर सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। सभी हैरत और बेयकीनी से साद की जानिब देख रहे थे। वो भला कैसे किसी का कत्ल कर सकता था। अजलाल मलिक तड़प कर आगे बढ़े और कहने लगे, सदर तुम्हें लाजमी कोई का गलत फहमी हुई है। भला साद ऐसा क्यों करेगा? वो तो अहमद का दोस्त है। मैंने आज तक अपने बेटे को असलहा नहीं दिया और तुम कह रहे हो ये तुम्हारे भाई का कातिल है। अजलाल मुख की ओअज़ गुस्से से कांप रही थी क्योंकि वो जानते थे कि अगर समद मुख अपनी बात पर कायम रहा तब सब का क्या नतीजा निकलेगा। दोनों खानदान बर्बाद हो जाएंगे। आप इससे पूछें कि ये कल रात कहाँ था। सब ने इसकी तरफ देखा। मैं कल रात अहमद के साथ ही था, मगर मैं तो घर आ गया था और उसने कहा था कि इसे किसी जरूरी काम से जाना है। साद ने अटकुत्ते हुए अपनी सफाई दी। झूठ बोल रहा है कि कल रात को इसकी किसी बात पर अहमद से लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से इसने अहमद को जान से मार दिया। समर एक बार फिर से खुद को छड़ाकर साद को मारने लगा। लोगों ने इसे काबू किया। जलाल मलिक आगे बढ़े और सिम से कहने लगे कि अभी तुम्हारे भाई की मैयत इस हवेली में मौजूद है, पहले इसे दफ्ता कराते हैं और फिर इस बात का फैसला करते हैं। ये कहते हुए उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उनका जवान बेटा इस दुनिया से गया था। वो इसे मन्नौमिट्टी तले दफनाने की बातें कर रहे थे और फिर अहमद मुख की मैयत को कंधों पर उठा लिया गया। जलाल मुख की बीवी जीनत बेगम बुरी तरह से रो रही थी। वो माँ थी, उनका कलेजा बाहर आने को बेताब था। उनके जिगर के टुकड़े को यूं कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था। दूसरी जानिब अजलाल मुख की बेगम और बेटियां सहमी हुई खड़ी थी। उनका इकलौता बेटा और भाई बेहद खतरे में आ गया था। वो लोग सब बहुत
अच्छे से जानते थे कि साद कभी किसी को कत्ल नहीं कर सकता, बल्कि वो तो इसे पढ़ाना लिखाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने इसका शहर के कॉलेज में दाखिला करवा दिया था और वो चंद दिन की छुट्टियां गुजारने ही वो आया था। मगर यहाँ ये मुसीबत टूट पड़ी थी। वो जानते थे कि उनके बेटे पर ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, इसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मगर इस बात को वो साबित नहीं कर सकते थे। अहमद मुक को मनो मिट्टी तले दफना आ दिया गया। इसकी कब्र पर मिट्टी डालते हुए जलाल मुक बच्चों की तरह रोए थे। आज तक उन्हें कभी किसी ने रोते हुए नहीं देखा था। उनका रोब और धुदबा सिर्फ इसी गांव में नहीं था, बल्कि आसपास के सारे गांव में था। लोग उनके नाम से ही डरते थे। उन्होंने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की थी, हमेशा ही सबके साथ इंसाफ करने की कोशिश की थी। मगर आज उनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हो गई थी। उनका बेटा कब्र में जा सोया था, वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे। सबने बड़ी ही मुश्किल से उन्हें संभाला था। हवेली पहुंचे तो हवेली की फिजा बहुत ही भारी महसूस हो रही थी। गांव के कुछ बड़ों ने बैठकर दोनों खानदानों से कहा कि इस बात का फैसला अब कल होगा, क्योंकि अभी सब लोग गुस्से में हैं। वो रात सब पर ही बहुत भारी गुजरने वाली थी। कोई भी एक लम्हे के लिए सोया नहीं था। नींद सब की आंखों से कोसों दूर थी। साद तो अजलाल मुक का इकलौता बेटा था, वो कैसे अपने इकलौते बेटे को अपने हाथ से जाने दे सकते थे। यही बात सोच सोच कर उनका दिल बैठा जा रहा था। उन्हें अहमद भी इतना ही अजीज था और उन्हें पूरा यकीन था कि साद को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। जलाल मुक की हवेली के लान में ही पंचायत बिठा दी गई। साद को मुजरिम के तौर पर सबके सामने लाया गया। अजलाल मुक साद को लेकर जलाल मुक की हवेली के लान में मौजूद थे। अपनी बीवी और दोनों बेटियों को उन्होंने इस पंचायत में आने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि वो सालों से ऐसी पंचायत के फैसले करते आ रहे थे। मगर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो खुद भी कभी इस पंचायत का फैसला सुनने के मुंतजिर होंगे। अजलाल मुक की बेगम जिद करके इस पंचायत में चली गई, क्योंकि वो अपने बेटे को किसी भी सूरत अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। मिनाहिल और रामीन घर पर ही थी। 11 साला रामीन कई बार मिनाहिल से पूछ चुकी थी कि ये सब क्या हो रहा है, मगर इसे मिनाहिल क्या बताती। इसके पास बताने को कुछ नहीं था। वो दोनों हवेली की छत पर खड़ी जलाल मुक की हवेली के लान की जानिब देख रही थी। पंचायत बैठ गई थी। जलाल मुक बिल्कुल खामोश थे। एक जानिब उनका अपना बेटा था, जिसे वो कल दफ्ता अलिफी थे, तो दूसरी जानिब उनका भाई और भतीजा था। वो कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये समझ की ही जिद थी कि पंचायत बैठेगी और फैसला होगा। सब लोग धड़कते दिल के साथ पंचायत का फैसला सुनने के मुंतजिर थे। इस खामोशी में समद मुक की ओअज़ उभरी थी। इसकी ज़र्ब इस कदर शदीद थी कि अजलाल मुक और जमीला बेगम तड़प उठे थे। सद मलिक कत्ल का बदला कत्ल ही चाहता था। वो लोग कैसे अपनी आंखों के सामने अपनी बेटे को मरते हुए देख सकते थे। मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। आप लोग कैसे इसे मारने की बात कर सकते हैं। अजलाल मुक की आंखें लाल हो रही थीं। ठीक है, अगर तुम कत्ल का बदला नहीं देना चाहते तो तुम्हें अपनी बेटी को वनी करना पड़ेगा। ये बात सुनकर सबको सांप सूंघ गया था। सद अच्छे से जानता था कि चचा अपनी दोनों बेटियों से किस कदर मोहब्बत करते हैं। उनके लिए ये फैसला कितना मुश्किल होगा। और वैसे भी इसका मकसद उनकी बेटी को वनी करना नहीं था, बल्कि अपने भाई के कत्ल का बदला लेना था। जलाल मुक एक ताकतवर शख्स थे। सभी हैरान परेशान थे कि अब क्या होगा। जलाल मुक इस सारे मामले में कुछ नहीं बोले। वो अपनों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। वो आज खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रहे थे। अजलाल मुक का झुका हो उसर उठा था। उन्होंने एक नज़र अपने इकलौते लख्त जिगर की जानिब देखा, जो बेहद घबराया हुआ वहां बैठा था। वो अगर अपनी बेटी को बचा लेते तो उनका बेटा इनके सामने ही कत्ल कर दिया जाता, और अगर बेटे को बचाते तो बेटी कम अज कम जिंदा तो रहती। उन्होंने अपनी बेटी को वनी में देने का फैसला कर लिया था। सबकी नज़र में अजलाल मुक पर जिमी थी, मगर समद इस फैसले से खुश नहीं था। फिर इस भरे मजमे में अजलाल मुक की ओअज़ गूंजी थी। वो कह रहे थे कि मैं अपनी बेटी को वनी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मिनाहिल के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। जमीला बेगम फूट फूट कर रोने लगी थी। साद ने बेइख्तियार अपने सर को थामा था। समद मलिक ने अपने अंदर उठते तय्युश का गला गेविंटा था। जलाल मलिक अब भी बिल्कुल खामोश थे। पंचायत में से एक बुजुर्ग की ओअज़ उभरी थी। वो जलाल मुक को मुखातिब करके कह रहे थे कि तुम अजलाल मुक की बेटी का निकाह अपने किसी मुलाजिम से करना चाहोगे या फिर अपने बेटे से करना चाहोगे। अब सब की नज़र में जलाल मुक पर थी। वो बस जमीन को घोर रहे थे। फिर उन्होंने आहिस्तगी से सर उठाकर सद मुक की जानिब देखा और इससे पूछा कि क्या बदला लेना जरूरी है, ये हमारे अपने लोग हैं। ये कहते हुए जलाल मुक की ओअज़ कांप रही थी। मुझे उनकी बेटी वनी में नहीं चाहिए। मुझे अपने भाई के कत्ल का बदला चाहिए, और कत्ल का बदला कत्ल होता है। मैं खुद अपने हाथों से अपने भाई के कातिल को मौत के घाट उतारना चाहता हूं। सैद मलिक ने खड़े होकर कहा था। जलाल मलिक भी खड़े हो गए। वो हरगज़ भी अपने भाई के बेटे को जान से नहीं
मारना चाहते थे। उन्होंने अपने बेटे के जानिब देखते हुए कहा, अगर तुम मिनाहिल से निकाह पर राजी हो तो ठीक है, वरना मैं मिनाहिल का निकाह अपने किसी भी मुलाजिम से कर दूंगा। ये कहकर उन्होंने चंद मुलाजिमों को ओअज़ दी। वो सब लोग उनकी एक ओअज़ पर दौड़े आए थे। पिल भर में ही समद मुख की आंखों में खून उतर इतने वो अपनी मोहब्बत को यूं किसी और का होते कैसे देख सकता था। वो हर गज भी नहीं चाहता था कि इसकी मोहब्बत का तमाशा यूं भरे बाजार में बने, मगर अब वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि इसका अपना बाप अपने बेटे के कातिल को सजा देने के लिए राजी नहीं था। इसलिए वो यहाँ कमजोर पड़ गया था। जिस मोहब्बत को इसने खुद से छुपाकर 7 पर्दों में रखा था वो आज यूं रुस्वा हो रही थी। इसके घर के नौकरों को इसे निकाह करने के लिए खड़ा कर दिया गया था। इसने एक नज़र मुलाजमों पर डाली। वो लोग इसकी नज़रों का मफहूम समझकर पीछे हट गए। ठीक है, मैं मिनाहिल से निकाह करने पर तैयार हूँ, ये कहते हुए इसे खुद भी अपनी ओअज़ अजनबी महसूस हो रही थी। अजलाल मलिक ने टूटे हुए लहजे में अपने पीछे खड़ी एक मुलाजमा से कहा कि जाकर मिनाहिल को बिला कर ले। ओ मुलाजमा जब मिनाहिल को बुलाने आई तो मिनाहिल गुमसिम सी खड़ी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो उन सब का सामना कैसे करेगी। जब मुलाजमा ने अगर अजलाल मुख का पैगाम दिया तो सोच में पड़ गई। इसे यकीन नहीं था। उसके कंधे पर पड़ा दोपट्टा अपने सर पर ओढ़ा और मुलाजमा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। 11 साला रामीन भी इसके साथ जाने की जिद करने लगी। जब वो दोनों मुलाजमा के साथ जलाल मुख की हवेली के लान में पहुंची तो फिजा में छाया जब इस मजीद बढ़ गया, यहाँ तक कि सांस रुकने लगा था। मिनाहिल का दिल भी बहुत जोरों से धड़क रहा था। इससे अपनी मौत करीब ही नजर आ रही थी। वो खामोशी से अजलाल मुख के बराबर में जाकर खड़ी हो गई। इसने एक जख्मी नजर अपने बाप पर डाली जिसका सर झुका हुआ था। वो जान से अजीज बेटी की कुर्बानी दे रहे थे। उन्होंने यही सोचा था कि कम अज कम उनकी बेटी जिंदा तो रहेगी, वरना भी उनके सामने ही उनके बेटे को कत्ल कर दिया जाता। वो सर उठाए उनकी तरफ देख रही थी। तुम्हारा निकाह समर से हो रहा है, ये कहते हुए अजलाल मुख की आंखों में उन सवा गए। वो भी जानते थे कि वनी का मतलब क्या होता है, मगर उन्हें सर से इतनी सिफाकी की उम्मीद नहीं थी। इसीलिए वो मिनाहिल का हाथ उसके हाथ में दे रहे थे। मिनाहिल दुख और बेयकीनी से अपने बाप को देख रही थी। बाबा मुझे वनी नहीं होता है, ये कहते हुए इसे अपनी ओअज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। पिल भर में सब कुछ बदलने वाला था और फिर मनोबल के लाख इनकार के बावजूद उसका निकाह सिम से कर दिया गया। निकाह हो चुका था। सारे लोग आसित्ता आसित्ता उठकर वहां से जाने लगे थे। अब वहां सिर्फ जलाल मलिक और अजलाल मुख के घर वाले ही रह गए थे। सब लोग एक दूसरे से नजरें चरा रहे थे। मिनाहिल बिल्कुल साकित सी बैठी थी। इसे अपने बाबा से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। समद अजलाल मुख से मुखातिब हुआ और उनसे कहने लगा कि चचा जान, अब आप खुशी खुशी अपनी हवेली में वापस चले जाए। अब के बेटे की जान बच चुकी है, मगर अब आप अपनी बेटी को भूल जाएं। अपने खुद इसे अपने हाथों से वनी किया है और आप अब भी जानते हैं वनी की गई लड़कियां कभी भी अपने घरों को वापस नहीं लौटती। ये कहते हुए इस ने एक नजर मिनाहिल के झुके हुए सर पर डाली और आगे बढ़कर एक झटके से इसका हाथ पकड़कर इसे खड़ा कर दिया और इसे लेकर अंदर हवेली की जानिब बढ़ गया। अजलाल मुख भारी दिल के साथ अपनी बीवी, बेटे और एक बेटी के साथ अपनी हवेली में अगी आज की रात उन पर बहुत भारी गुजरने वाली थी। घर अगर वो अपने कमरे में बंद हो गए, जमीला बेगम को किसी सूरत चीन नहीं था। उनकी जान से प्यारी बेटी बनी हो गई थी। ऐसी माँ को कैसे चीन मिल सकता था। साथ सर झुकाए बैठा था। जो गुनाह इसने नहीं किया था उसकी सजा इसकी बहन को मिली थी। वो बहन जो इसे कल रात तक तसल्ली दे रही थी, आज इसे ही वनी कर आया था। समद मिनाहिल को लेकर हवेली में दाखिल हुआ और अपनी खास मुलाजमा के हाथ में मिनाहिल का हाथ दे दिया और इसे कहा, इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। मुलाजमा इसकी बात का मतलब समझ गई और मिनाहिल का हाथ सख्ती से थाम कर इसे हवेली के तहखाने में बने हुए कैद खाने में ले गई। सैयद मलिक ने बेइंतहा रमी से मिनाहिल का हाथ थामा हुआ था, मगर जब इस मुलाजमा ने मिनाहिल का हाथ थामा तो उसके मुंह से चक निकल गई। इस मुलाजमा ने मिनाहिल को कैद खाने में बंद कर दिया था। वो रोती रही, मगर जाने सद कहाँ चला गया था मिनाहिल को। इस तहखाने में बंद 2 दिन गुजरने वाले थे जब मुलाजमा ने इस पर हाथ उठाया था और वो बेहोश हो गई थी। वो लाडोहे में पली थी। भला इतनी सख्ती की कहाँ आदत थी। आखिरकार 2 दिन बाद समद को मिनाहिल का ख्याल आ ही गया था। वो मिनाहिल को मुलाजमा के हवाले करने के बाद खुद शहर अलिफ गया था। वो नहीं जानता था कि मुलाजमा ने मिनाहिल के साथ किया होगा। जब वो 2 दिन बाद हवेली लूटा और उसने मुलाजमा से मिनाहिल के बारे में पूछा तो उसकी पैरों तले से जमीन निकल गई। जब मुलाजमा ने इसे बताया कि वो तो तहखाने में कैद है, वो फौरन ही कैद खाने भागा और वहां पड़ी बेहोश मिनाहिल दिखाई दी। वो फौरन इसकी जानिब बढ़ा और उसके नाजुक गाल पर उंगलियों के निशान देखकर बुरी तरह से चलाया कि इस पर हाथ किसने उठाया है। मुलाजमा काम कर रहे
गई। वो तो इसे महज एक वनी में आई लड़की समझ रही थी। साहिब ये काबू में नहीं आ रही थी, इसलिए उन पर हाथ उठाना पड़ा। मुलाजमा ने डरते हुए कहा, तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी। तुमने किससे पूछ कर इसे तहखाने में बंद किया और उस पर हाथ उठा। आइए कहते हुए सोने मिनाहिल को अपनी बाहों में भर लिया और इसे वहां से लेकर निकल गया। सब लोग हैरत से इसे देख रहे थे। 2 दिन पहले तक वो इंतकाम की उग में झुलस रहा था और इसी कातिल की बहन को तकलीफ पहुंचाने पर बुरी तरह से तड़प रहा था, और आज वो मिनाहिल को अपनी बाहों में उठाए अपने कमरे में ले आया और इसे अपने बेड पर लेटा दिया। मनोबल अब तक बेहोश थी। वो ये बात भी जानता था कि मिनाहिल ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया होगा। इसने खुद को मलामत किया कि वो क्यों मिनाहिल से लापरवाह हो गया था। वो भले जितना भी संग दिल सही, मगर अपनी मोहब्बत के मामले में वो बहुत नरम दिल था और मिनाहिल को तकलीफ में नहीं देख सकता था। इसने मिनाहिल के मुंह पर पानी के छींटे मारे। मिनाहिल होश में आने लगी और फिर इसने अपनी आंखें खोल दें। इसे आंखें खोलकर सबसे पहले सदर का चेहरा नजर आया था तो वो फौरन से उठकर बैठ गई। खौफ और दहशत से इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। वो अब तक 2 दिन पहले वाले ही कपड़ों में मलबूस थी। इसके चेहरे और हाथों पर जगह जगह खराशों के निशान थे। मिनाहिल अपनी जगह से उठकर बैठ गई और खौफजदा नजरों से सदर को देखने लगी। अब के कहने पर इस मुलाजमा ने मुझे इस जगह कैद किया था। मिनाहिल ने बेयकीनी से सर से पूछा। इसकी आंखों से झलकता खौफ बा आसानी देखा जा सकता था। इसने अब के कहने पर मुझ पर हाथ उठाया और देखें, इसने मुझे धक्का भी दिया। अपने हाथों की खराशें देख कर वह पूरी तरह से रोने लगी थी। सर को ऐसा लगा किसी ने इसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो। मिनाहिल तुम उठो, मुंह हाथ धो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवाता हूँ। समद एक नजर उसके रोते बिलखते वजूद पर डालकर कमरे से निकल गया। इस दिन के बाद से मिनाहिल को किसी किस्म की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा था। जलाल मलिक और जीनत बेगम का रवैया भी इसके साथ सही था, मगर समद इस दिन के बाद से दोबारा अपने कमरे में नहीं आया था। मिनाहिल इसके कमरे में रह रही थी। समद और उसके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी, मगर जब जब वो अपने भाई की मौत को याद करता इसका दिल दुख से भर जाया करता। इसीलिए वो मिनाहिल के सामने नहीं जाता था। समद उन दोनों अदमियों को रात दिन ढूंढ रहा था जिसने इसे ये सब बताया था कि साद ने अहमद को कत्ल किया है, मगर इस दिन के बाद से वो लोग गांव में दिखाई नहीं दिए थे। मिनाहिल को यहाँ रहते हुए 2 माह गुजर चुके थे। वो जलाल मलिक और ज़ैनब बेगम का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती थी। वो दिन रात उनकी खिदमत करती थी, मगर ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के जीने की वजह ही खत्म हो चुकी है। मिनाहिल अपने घर वालों से मिलना चाहती थी। इसे अपने माँ बाप आदीरे हैं थे, मगर वो जानती थी कि वो समद की इजाजत के बना अपने घर वालों से नहीं मिल सकती। रात के 2 बज चुके थे, मगर सद अब तक घर नहीं आया था। फिर आखिरकार इसे सदर की गाड़ी हवेली में दाखिल होती दिखाई दी। मिनाहिल फौरन से नीचे उकसद गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतर रहा था। जब हवेली के लान में इसे मिनाहिल खड़ी हुई दिखाई दी, वो मिनाहिल के जानिब उगा और इसे कहने लगा, तुम रात के इस पहर यहाँ किया कर रही हो? इसके लिए मैं सख्ती नुमाया थी। मिनाहिल ने गेबर अगर उसकी जानिब देखा और उसे कहा, मैं अब से कुछ बात करना चाहती हूँ, जाओ अपने कमरे में, मैं वहीं आ रहा हूँ। समद ने इसके घबराए हुए चेहरे से नजरें हिटली। मिनाहिल फौरन से अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद सद भी उगा। मिनाहिल इसे कहने लगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। इसकी बात सुनकर समद की आंखें सुर्ख हो गईं। इसने मिनाहिल से कहा कि कुछ दिन रुक जाओ, बस मुझे एक बार वो दोनों आदमी जाएं, फिर तुम्हारे भाई को अदालत के जरिए सजा दिलवाऊंगा और तुम्हें भी आजाद कर दूंगा। फिर चली जाना अपने घर, क्योंकि ये फैसला मेरे बाप ने किया था, मगर मुझे कत्ल का बदला कत्ल चाहिए। ये कहकर सैयद कमरे से चला गया। मनोबल खामोश खड़ी रह गई। वो नहीं जानती थी कि इसकी किस्मत में क्या लिखा है। वो तो सद की मोहब्बत से भी वाकिफ नहीं थी। वो दिन भी एक आम सा दिन था जब सिख के खास आदमी उन दवादमियों को लेकर हवेली में दाखिल हुए। वो अपने कमरे की खिड़की में खड़ी ये मंजर देख रही थी। सब भी अंदर आता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी समद को देखते ही इसके कदमों में गिर गए और कहने लगे, हमें मुआफ कर दी, हमें तो ये काम करने के पैसे मिले थे। दूसरे गांव के वडेरे ने हमें ये सब करने के लिए कहा था, क्योंकि इसने ही अहमद का कत्ल करवाया था और इल्जाम साद पर डाल दिया था। जलाल मलिक भी वहीं खड़े थे। वो लोग अपना सर पकड़ कर बैठ गए। इस वक्त पंचायत बिठाई गई। उन आदमियों को इस वडेरे के खिलाफ गवाह के तौर पर पेश किया और फिर सब ने देखा कि कत्ल का बदला कत्ल करके ही लिया गया था। इस बार सिम्मुक अपने फैसले से पीछे नहीं हटा था। इसने अपने भाई के कातिलों को इनके अंजाम तक पहुंचा दिया था और भरी पंचायत में अपने चा और साथ से हाथ जोड़कर मुआफी भी मांगी थी। अजलाल मलिक ने दिल पर पत्थर रख के अपने भाई और समद से सुलह कर ली थी। उधर मिनाहिल अपने कमरे में सभी हुई बैठी थी। सोने कहा था कि वो इसे आजाद कर देगा, मगर वो हरगज़ भी इस रिश्ते से आजाद नहीं होना चाहती थी। मगर वो तो समझ रही थी कि इसका वजूदाल सर पर महज बोझ है। वो आज तक नहीं समझ सकी थी कि समद इससे मोहब्बत करता है, वरना कौन वली में आई।
लड़की की तकलीफ पर तड़प उठता है। वो अपने कमरे में बैठी थी जब समर मुख कमरे में दाखिल हो। वो आज तीसरी बार कमरे में आ रहा था। वो अगर खामोशी से जूतों समेत बेड पर ले गी और ना इससे पहले वो दोनों बार महज दरवाजे में ही खड़ा रहा था। आज थकन इसके चेहरे से ही आया भी। मिनाहिल ने एक सभी हुई नजर इस पर डाली और उसकी आंखों से उनसों बहने लगे थे। वो समद के कदमों में बैठ गई। समद ने हैरानी से इसे देखा। मिनाहिल ने इसे कहा, मुझे तलाक मत देना, भले मैं वनी में होकर आई हूं मगर हमारा निकाह हुआ है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। सोने थकी थकी नजर इस पर डाली और इसे अपने कदमों से उठाकर अपने बराबर में बिठा लिया और उससे अपने किए की मुआफी मांग कर कहा कि जाओ अपने घर वालों से मिल आओ, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। और फिर कुछ दिनों में ही दोनों हवेलियों का माहौल खुशगवार हो गया था। सबके दिल एक दूसरे के लिए साफ हो गए थे।